Hi Asha, hi Minal, how are you? Hi. Hi, Ardima. Good, good. How are you? I'm fine. So, very firstly, congratulations to you and I welcome you on Cine Speaks. So, Thank you so much. Thanks for ख्वाबों having me. ख्वाबों के परिंदे, how this happened to you both? मतलब ये रोल आप तक कैसे पहुंचा and how आप कैसे आप तक अप्रोच हुआ है ये रोल and what you felt about it जब आपने सबसे पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी and you knew about your role. So, I want to know about that experience. So, for me, my very good friend Rohan Shah, who's also an actor but who's doing behind the camera job in the show, he called me and he told me about this script and about the characters. So, yeah, I went through the script and then I met these guys, Tapas, who is the director of the show. And it looked quite cool, it looked quite interesting, and I thought that this would be like a great chance for me to break that stereotypical image that I've been carrying since years without You're doing looking well. very cool. Your hairstyle, I'm Others very, Bahu. Yeah, very cool hairstyle. thank you. But yeah, that Adarsh Bahu image, I thought it'll be like a great um यही uh, मौका है सारी हरकतें break करने that. का. So yeah, Exactly. We have seen you in Barish. Very normal, simple girl, married woman. Uh, so बहुत ज्यादा ब्रेक हुआ है सही में एक अलग पर्सनालिटी देखने को मिल रही है अभी तो हमने ट्रेलर ही देखा है जिसमें I, बहुत छोटे से शॉट देखे हैं जिसमें यू आर कॉलिंग दीक्षित दीक्षित एंड दैट एक्सप्रेशन इज वेरी कूल सो आई मस्ट से बहुत अच्छा लग रहा है काफी ब्रेक हुई है पर्सनालिटी काफी कुछ नया निकल के आ रहा है तो ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है इसको लेके फॉर ख्वाबों के परिंदे correct. एंड Yeah. Mrinal, what you want to say about your ख्वाबों के परिंदे approach and all? I think it was from the word go when we got that call of shooting a road trip film with friends in Australia. Sounded, I mean, there was nothing for nothing in it to say no. I was like, यार ऑस्ट्रेलिया में ये लोग रोड ट्रिप की फिल्म बनाने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है. मतलब ठीक है, हाँ पहले बोल देता हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं. तो एक्चुअली वो वैसा हुआ था. एंड इफ यू रिमेंबर आशा, वो एक साल पहले वो कैंसर मतलब वो शेल हो गई थी फिल्म एंड दे हैड टोल्ड अस दैट विल कम बैक टू यू नेक्स्ट ईयर और फिर हम फिर से करेंगे. तो मुझे लगा यार यहाँ पर मतलब इतने टाइम से तो है कि But I was not a part of it then. It was यू वर नॉट. No, I was Oh, not. Somebody else was that's playing. I don't good. know. But yeah, I came later. There must have been some other Bindia. So yeah, it was great, and these people seemed very keen and very enthusiastic with what they wanted to do, and we just I think surrendered after a point. All of us, we just thought कि इन्हें पता है क्या करना चाहते हैं, and we just joined the bandwagon. हम literally caravan में चढ़ गए इनके साथ कि देखते हैं कहाँ तक जाते हैं. Yeah. तो अभी तक आपका नाम हमें सिर्फ दीक्षित पता है तो कोई फुल नेम है या ये आपको सरनेम से बुलाया जा रहा है फुल नेम होगा कुछ तुम ही बता दो. दीक्षित वैसे तो हम इसको गोटे बुलाते हैं प्यार से. दीक्षित गोटे. दीक्षित गोटे. दीक्षित गोटे is your full name okay Yeah. so Yeah. when you're playing role तो ऐसा कई बार होता है कि जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या बिंदिया में हो गई या फिर दीक्षित में हो गई कुछ हमसे मैच करती हैं तो ऐसा कुछ हुआ कि ऐसा लगे कि हाँ यार ये चीज तो मेरे अंदर भी बहुत है like I also do like this. Yeah, I think for me, though, Bindiya is very much like Asha. And yeah, that I Like realized. you, Huh? like you mean? Yeah, very much like me, like Asha. So, thoda easy bhi tha wo, but then it also becomes difficult when you don't understand where to draw that line. तुम अपने आप में ही बह जाते हो और फिर बाद में realize होता है, नहीं आशा ऐसा कर रही है बिंदिया ऐसा नहीं करेगी. So that drawing that line is also very important. But yeah, Bindiya is a lot like me. And Mrinal, what you I want add to that उससे and you also tell me Asha, it really helped because इन लोगों को characters बहुत अच्छे से पता थे कि how they wanted. मतलब तपस को even I think we took the most time. I think इसने बिंदिया पकड़ लिया था सब. Everybody was there. Me and Tapas, I remember we sat a lot to crack Dikshit. Dikshit is a very far away person from my personality at the moment today. In today's time, if you ask me, that's what these guys tell me, that you're very away and you're not like Dikshit. Not at all. The things I was doing offside were just not Dikshit like. So I was not Dikshit, but
वो इन लोगों को कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से पता थे, तो इट हेल्प्ड अस रीच दैट पॉइंट. Tappa Sadhak had a clear idea. I mean, Dixit is a geek, is a nerd on paper, but that's not how he wanted. He wanted कि उसके inner complex जो कुछ है उसी को पकड़ के चले, और बाकी he knew where I'm going ज्यादा या कम. So that really helped. And coming to your question, I think people think that I am, not like Dixit. Yeah, you are not. Not right now, but I was. I think I relate to his journey of discovering himself. I was a very shy kid in school. So from there to here, wo wali journey could be, something which is similar, but not today, not anymore. I'm not Dixit. I haven't been Dixit for the past 10 years. ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि ये एक रोड ट्रिप है फ्रॉम मेलबोर्न टू पर्थ. तो कितना एंजॉय किया आपने शूटिंग के टाइम पे? यू मस्ट हैव एंजॉयड अ लॉट, सो आई वांट टू नो अबाउट दैट. अरे मतलब now when the show is coming out, we like each and every memory we are recollecting, and it's just so nostalgic because we had so much fun. It actually felt like हम चार दोस्त एक रोड ट्रिप पे और शूटिंग साइड बाय साइड चल रही है. So so much fun, from staying in hostels, sleeping in bunk beds, hunting for Indian restaurants, and Yeah. yeah, I mean we were shooting in और like दोस्त थे, सारे कैमरा के पीछे भी दोस्ती थे. आप it was a very young crew, Yeah, right. तो बहुत ही मजेदार था. सॉरी, आप क्वेश्चन क्या था? मेरा यही क्वेश्चन था कि हाउ मच यू एंजॉयड ड्यूरिंग द ट्रिप. मतलब ये कि रोड ट्रिप दिखाई गई है तो यू माइट हैव एंजॉयड अ लॉट. तो बहुत ज्यादा. आई थिंक आशा एंड मी आर प्रीटी सिमिलर इन दैट रिस्पेक्ट कि मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा था कि हम ट्रैवल कर रहे हैं और हम शूटिंग भी कर रहे हैं और हम निकले हुए हैं बस. तो वो आइडिया तो मेरे लिए ये था कि मैं और 2 महीने कर सकता था. वो पता नहीं 1 महीने, आई डोंट नो, बट आई कैन, लाइक इट वाज जस्ट अमेजिंग. आप ऑस्ट्रेलिया दोबारा जा सकते हो, आप अब्रॉड शूट कर सकते हो, but to do something like this, which is a month and a half of just being on the road, और ऑस्ट्रेलिया के कौन से कोनों में हम गए हैं. रात को जहाँ 100 कैंगरूज हमें नजर आ जाते थे आउट ऑफ नोवेयर. हमें मिल्की वे नजर आता था रात को वहाँ मंडी से. हम मतलब कहाँ गए. हाय. तो इट वाज सरियल एक्चुअली. हमें पता ही नहीं था कि हम कितनी कूल चीज कर रहे हैं उस समय. हम बस कर रहे थे. Seriously, and I think for all 4 of us, and I think for the crew also, but especially I would like to say, for all 4 of us, I felt that that trip changed us in a very good way. Like I personally felt that I changed after that trip. I was a different person. I learned so much in that trip. For sure. ये मुझसे कोई पूछ रहा था कि आशा की पहली तुम्हारी वो क्या थी? What is the first memory of आशा? मैंने बोला शिट, मुझे नहीं पता. और सडनली मुझे याद है. मुझे लगा, मैंने बोला यार मुझे तो बहुत जल्दी लगी थी वो पहली बार जब आई थी. तो आई वांट टू आस्क अबाउट योर बॉन्ड. ऑफ स्क्रीन कैसा बॉन्ड रहा आप लोगों को और आपने कितनी मस्तियां करी? क्योंकि एक सबसे बड़ा रोल जो इसमें दिखाया जा रहा है वो फ्रेंडशिप का है, कि अबाउट फ्रेंडशिप, सेल्फ डिस्कवरी. तो रोड ट्रिप के दौरान आप खुद को डिस्कवर करते हो, अपने बारे में और जानते हो. कुछ ऐसा सा ट्रेलर में नजर आ रहा है हमें. तो फ्रेंडशिप से मैं ये जानना चाहूंगी कि ऑफ स्क्रीन कैसा रिलेशन था आप लोगों का और कितनी मस्तियां हुई? I think मुझे ऐसा लगता है मैं और मृणाल तो उतने ही क्लोज आए जितना दीक्षित और बिंदिया क्लोज थे, बिकॉज हमारा शुरू हमने लड़ाई से की थी. हमने बहुत जल्दी 2 हफ्ते में हमने पहले झगड़ा कर लिया और उसके बाद झगड़ा वगड़ा होके सॉल्व करके उसके बाद हमारा बहुत सही गया फ्लो. काफी सही था. आशा मेरे लिए कॉफी बनाती थी और आशा की वो प्रीटी कॉफी की आदत पड़ गई थी. प्रीटी कॉफी. हाँ, मतलब वही ठंड थी, थक जाते थे सब लोग, बट वी काइंड ऑफ हैड ईच अदर्स बैक आल्सो टू एन एक्सटेंड, बिकॉज़ सब थक भी जाते थे और बहुत एग्जॉस्टिंग शूट होता था. ठंड होती थी बहुत ज्यादा. सो इनवेरिएबली शाम को आपको आके अपना देखना ही पड़ेगा कि मुझे आराम करना है भी थोड़ा, या आई नीड टू पीस आउट और चिल एंड डू माय थिंग. बट फिर भी एवरीबॉडी वाज अ क्लोज यूनिट. राइट. सब मतलब ऐसा नहीं था कि कोई साइड में था या कोई इन्वॉल्व नहीं था. इट वाज ऑल लॉट ऑफ सब दोस्त थे. सब दोस्त थे and everybody was doing everything. like कोई सिर्फ एक्टर या सिर्फ कैमरामैन या सिर्फ डायरेक्टर नहीं था. हर कोई सब कुछ कर रहा था. तो रियल लाइफ में ऐसी कोई रोड ट्रिप करना चाहते हैं या करी हुई है, उसके बारे में कुछ? रियल लाइफ में यार रोड ट्रिप तो इतनी नहीं की है, बट या ट्रिप्स बहुत की है बिकॉज़ आई लव ट्रैवलिंग. आशा ट्रैकिंग के बारे में बता दे. मुझे भी नहीं पता क्या होगा ट्रैकिंग.
हाँ मैंने रिसेंटली हाँ, अभी मैंने एक इंटरव्यू में आपकी ट्रैकिंग के बारे में सुना, और मैंने वो इंटरव्यू देखा, तो आई तभी मैंने क्वेश्चन भी आपसे पूछा कि कोई ऐसी मेमोरेबल ट्रिप आपकी दोस्तों के साथ रही हो, क्योंकि आपने ये रोड ट्रिप और फ्रेंडशिप के बारे में तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें लगता है ना कि हमने करी है ये, एंड हम्म, डन दिस ऑलरेडी, सो इसके बारे में कुछ तो या मतलब रोड ट्रिप तो नहीं, बट हाँ लाइक ये मेरा पेटेंट है कि मैं जब घर जाती हूँ तो अपने बचपन के दोस्तों को उठाती हूँ और निकल लेती हूँ पहाड़ों में। और अभी रिसेंटली मैंने एक प्रॉपर लाइक प्रोफेशनल ट्रैक किया था जिसमें हालत खराब हो गई थी। मुझे ऐसा लगा था कुछ ज्यादा ही तो नहीं चैलेंजिंग वो कर लिया है। मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ लगता है कुछ मजाक मजाक में ज्यादा ही हो गया, बिकॉज यार इतना लाइक 21 किलोमीटर्स ऐसे चढ़ाई, एंड देन toilets nahi, they were like digging the ground and putting a tent on it, and that's how we had to manage it. And so yeah, but it was an adventurous trip, and now when I think about it I feel, oh wo kar liya, so maybe one more time I can try now something a little more difficult or maybe something similar. So yeah, but traveling I love. एंड मृणाल, यू आपको कोई ऐसी रोड ट्रिप करने का मन हो या आप कर चुके हो, उसके बारे में Yeah, कुछ I would like to drive yeah, Nordic, मतलब Nordic countries का पूरा मुझे, I think I would like to drive through the Nordic countries, but yeah, I have, again as I said, ऐसा road trip replicate करना बहुत मुश्किल है जहाँ आप 1.5 महीने तक it will have to be very 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 well researched और बहुत ही तसल्ली के साथ आपको ऐसा करना पड़ेगा. Something like this I'm not sure can happen, but yeah, बहुत road trips किए हैं, पहाड़ों पे किए हैं, बाहर भी किए हैं. Yeah, I mean, not something specific I can think of, but I love road trips, yes. लोग सोशल मीडिया पे ख्वाबों के परिंदे नाम है इस शो का, तो अपने परिंदास को बहुत ज्यादा हैशटैग में डाल रहे हैं कि इनके साथ मैं ट्रिप करना चाहता हूँ। तो ऐसे कोई फ्रेंड्स इनके साथ अभी आप आगे सोच रहे हैं कि ऐसी कोई रोड ट्रिप प्लान करना चाहेंगे? अम, वही है, या यहाँ इंडस्ट्री से तो आई थिंक करण भाई को उठा लूंगी और अपनी बचपन की दोस्त को उठा लूंगी, देहरादून से कजिन है और उसको उठा लूंगी, बस हो जाएगी। ये इसको चलना होगा तो तू भी चल लेना। Ever ready. एंड मृणाल, यू वांट यार मुझे मेरा किसके साथ यूजुअली कैसा जाना होता है चाहेंगे कि मैं आप? जा रहा हूँ और कौन आ रहा है मैं अनाउंस कर देता हूँ और फिर इनवेरिएबली somebody just like joins in, because I think whenever वो ट्रैवल करने का प्लान बनता है ना, तो वो ऐसे नहीं बनता है कि किसी का इंतजार नहीं करता है वो प्लान. हाँ तो इंस्टेंट बनता है तुरंत। हाँ बनता है, मतलब वो मेरे अंदर चल रहा है, मेरे अंदर मुझे पता है कि अभी अगले महीने का कुछ आ रहा है. I've been home, I've been in Delhi, but मैं पहाड़ जाना चाहता था, because whenever I come to Delhi I also go to the mountains because my mother is also from the mountains. I couldn't go this time, but मेरे दिमाग में है कि I want to get out, so वो प्रोसेस हो रहा है. मैं 2-3 अपने खास दोस्तों को बोलूंगा जो whoever wants to join the bandwagon will come, but हाँ, I'll head for sure. हमसे ख्वाबों के परिंदे के बारे में कुछ शेयर करिए, एग्जैक्टली लोगों को क्या देखने में को मिलने वाला है इस शो में? Yeah, it's a lot of fun. I mean, there's a lot of fun that people will enjoy while watching the show, and also I feel वो जो बड़ी रियल तरीके से दिखाया गया है, दो दोस्तों को बैठ के बात कर रहे हैं जैसे हाउ इट हैपेंस इन रियलिटी इन आवर लाइफ। दो दोस्त अगर बैठ के डीप टॉक कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। आई थिंक इन सब मोमेंट्स से बहुत रिलेट करेंगे लोग, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फन, a lot of happy moments, and I think बहुत ही ऐसे good vibes वाला show है. So yeah, feel good vibes, I would say. Everybody would connect to the show, you know, especially the younger people, the youth will connect to the show, or the show has you know been made by the same people of the same age. जो characters इस कहानी जो age हम play कर रहे हैं, तो the show has been made by, you know, somewhat people of the same age, so they know the emotions really well. They know what they're wanting to say, and it's the best. It's right. I think it's the best time to watch something like this, right out of lockdown, right out of times when we've all, you know, missed our friends and we haven't done something like this for a while. ये best चीज है to come out and I mean not come out, stay at home and watch it, and you know miss and you know, just remember those times with your friends, and even look forward to times with your friends.
because the pakka ye nostalgia, it's just masti mazak ke baad, how it happens when you travel with friends. Masti mazak ke baad you do get into deeper conversations about life में क्या करना है, कहाँ है, एक दूसरे को Yeah, आप help, people can obviously can relate to it. Can relate to Vindhya, can relate to Dixit, can relate to Megha, and also the stranger Akash. जब ट्रेलर देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ यार हमने भी ऐसा किया है या हम ऐसा करेंगे. और मैंने कमेंट्स के गो थ्रू किए इस ट्रेलर के, तो लोग इसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से भी काफी कंपेयर करते हैं. उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आई थिंक यार बहुत सही चीज है, मतलब दैट फिल्म वाज डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन, एंड अगर ऐसे कंपेयर कर रहे हैं तो और क्या चाहिए हमें. काफी लोगों ने कमेंट में exactly. ऐसा लिखा है कि इट फील्स लाइक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसा कुछ हमें देखने को मिलने वाला है. Yeah, we just hope that they like the show. That's what there's a dialogue which says, embrace life, you only live once, which almost means जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. So जो मुद्दा है, जो soul है, वो pretty much same है. And yeah, आशा सही बोल रही है कि मतलब अगर वो उसके आसपास भी remotely होती है तो it's great, because that was again a very beautiful film. There is this one more dialogue ना, खुलोगे नहीं तो घुलोगे कैसे. I love that one. Yeah. My character has great scenes. Just talking about friends opening up. There's some amazing scenes which people are going to watch. Yeah. So रियल लाइफ में फ्रेंड्स की क्या इंपॉर्टेंस आप समझते हैं? क्योंकि काफी फ्रेंडशिप के बारे में तो ये जानना चाहूंगी कि व्हाट फ्रेंड्स रियली मीन इन रियल लाइफ. Yeah, I think for us, especially people who stay away from family, I think friends are your first family here, because family तो दूर है, तो अगर कभी कुछ भी परेशानी होती है, कुछ भी टेंशन, लाइफ प्रॉब्लम्स, इश्यूज, तो आई थिंक फ्रेंड्स ही हैं जिनके पास हम जाते हैं, जिनको हम अपने पास बुलाते हैं और बैठ के बात करते हैं, और जो हमें हेल्प करते हैं टू गेट आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, इश्यूज और फियर्स और व्हाटएवर. सो आई थिंक यार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स लाइफ में होना. एंड या especially I would say for people who are staying away from family, it's like their first family. Absolutely, like हम लोग जो stay away from family, it's itself, friends become your family. And also I feel to have a good life you need to inspire and entertain yourself, so friends do that a lot. Friends are needed. आप कितने भी डिसिप्लिन, कितनी भी लाइफ, कितने भी बच्चे हो जाएं, if you will not entertain yourself for 1 hour in a day, you will not be a very happy person, I feel. So वो दोस्तों के साथ रहना, to have a connect, to even howsoever busy you get, they are your recharge batteries, I feel. They just rejuvenate you, man. They do what nothing else does. So yeah, I mean, तो जिस दिन शूटिंग खत्म हुई, आई गेस हम हर एक कैरेक्टर से कुछ सीखते हैं. ऑब्वियसली यू आर प्लेइंग दीक्षित एंड आशा इज प्लेइंग विंध्या. सो कोई ऐसी एक आधी चीज जो आपको उस कैरेक्टर से सीखने को मिली एंड यू थिंक कि ये चीज मैं अपने अंदर डालूंगा और डालूंगी और आगे अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना चाहूंगा? यार वो तो मैं बताऊं. Sorry to interrupt. Ardhima, this has to be the last question. या सो उसके बारे में तो मैं बताऊंगी, बट उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आई थिंक जिस दिन हमारा लास्ट डे था शूट का, मैं बहुत रोई थी. और एक सीन था जिसमें एक्चुअली दीक्षित जा रहा है, वो आई थिंक फिल्म के लिए भी एक तरीके से लास्ट सीन टाइप का था, एंड हमारी शूट का भी वो आई थिंक लास्ट दिन था. और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, बिकॉज 2-2.5 महीने एक साथ इतना लड़ाई झगड़े प्यार सब था, तो मैं काफी इमोशनल हो गई थी. बट या आई थिंक मुझे विद्या से सीखने को मिला है कि कैसे मोमेंट में रहना है, कैसे मोमेंट में जियो, ज्यादा आगे की टेंशन मत लो, फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब मत सोचो, बट लिव इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट. एंड आई थिंक दीक्षित से भी मुझे एक चीज सीखने को मिली है कि कैसे हाउ दीक्षित कैसे कॉन्शियस है अंदर से अपने फियर्स में. आई थिंक I have been like that, and somewhere deep down abhi bhi kahin na kahin that fear sometimes of being judged or misjudged, I am a little conscious sometimes. So I think that one thing that I learned from Dikshit was this ki theek hai na yaar, like just love yourself and be yourself, and baki sab apna tel lene jayenge. So yeah, that one thing from him.
Yes, मेरा थोड़ा उल्टा है. मेरा be yourself, love yourself बहुत ज़्यादा है. मैंने दीक्षित से उल्टा सीखा कि sometimes it's okay to not be yourself also, and it's okay to live for others, and it's okay to you know do more things for other people and just be content even if you're not getting what you wanted. Though Dikshit opens up and becomes a person who pursues, who will pursue, I think, what he wants in life. But yeah, I think he's a very gentle, calm person. That's what I think I would also take from him. It was great talking to you. Thank you so much and congratulations for the coming Khwabon Ke Pehle. And we will watch you on Voot Select on 14 June. All the best. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye. Take care. Bye.